Welcome to Biokey for NEET. Before we start, please subscribe the channel and support our cause to bring best preparatory materials for NEET biology. Hello students, welcome back to my channel Biokey for NEET where we are preparing for NEET 2025 biology exam. हमारा आज का टॉपिक है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स. We have already covered lots of topics, so before your exams go and visit these videos, fast forward them and they will definitely help you in your NEET examinations. Without wasting time, let's start this video. इससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करें, please subscribe to the channel, share it with your friends and stay with me till the end. Question number 1. Which of the following is a passive process? So keep in mind that this video is going to be a little bit faster than other ones. इसको हम लोग जल्दी जल्दी complete करेंगे. Which of the following is a passive process? Active transport, endocytosis, osmosis, phloem loading. Answer is osmosis. देखिए ऑस्मोसिस में क्या होता है ना, इसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपी, जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है ना. यहाँ पे क्या होता है कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव होता है क्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. नेक्स्ट, वाटर पोटेंशियल इज मेजर्ड इन बार्स, एटमॉस्फियर्स, पास्कल, मेगा पास्कल. प्लांट फिजियोलॉजी में वाटर पोटेंशियल को हम लोग किस यूनिट में मेजर करते हैं? सो वाटर पोटेंशियल जिसको हम लोग डिनोट करते हैं इस तरीके से, इट इज मेजर्ड इन मेगा पास्कल. ठीक है. जो प्योर वाटर होता है स्टैंडर्ड कंडीशन में उसका क्या होगा वैल्यू? 0 मेगा पास्कल वाटर पोटेंशियल का. प्योर वाटर का स्टैंडर्ड कंडीशन में वाटर पोटेंशियल कितना होता है? 0 मेगा पास्कल. नेक्स्ट, the value of water potential for pure water at standard temperature is the value of water potential for pure water at standard temperature is. अभी मैंने बताया प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे वो होता है 0. ओके. नेक्स्ट, which condition is necessary for plasmolysis? Cell in hypotonic solution, cell in hypertonic solution, cell in isotonic solution या cell in pure water? Which condition is necessary for plasmolysis? So when does plasmolysis occur? Plasmolysis occurs when a cell loses water to a hypertonic solution, causing the plasma membrane to pull away from the cell wall. है ना. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल वॉल से दूर पुल होता है. ठीक है. सो आंसर इज बी, cell in hypertonic solution. Next, the primary driving force of water movement in xylem during the day is root pressure, capillary action, transpiration pull, osmotic gradient. Root pressure, capillary action, transpiration pull, osmotic gradient. Primary driving force of water movement in xylem during day is, during डे टाइम क्या होता है कि ट्रांसपिरेशन होता है, लीफ से जो ट्रांसपिरेशन होता है वो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है ना, जिसकी वजह से वाटर जो होता है जाइलम में अपवर्ड पुल होता है. दिस इज कॉल्ड कोहेशन टेंशन थियरी. इट इज आल्सो नोन एज कोहेशन टेंशन theory. All right, so answer is transpiration pull. The loss of water as liquid through hydrathodes is called transpiration, evaporation, guttation, bleeding. ये नाइट के टाइम होता है हाइड्राथोड्स का प्रोसेस.
जो लीफ के हाइड्रोथोड्स होते हैं, ये नाइट टाइम में जो है वाटर लॉस होता है इनसे, और आंसर है इसका गटेशन। Which element is most essential for active absorption of what? Magnesium, nitrogen, potassium, energy, यानी ATP. Which element is most essential for active absorption of water? So active process जब भी होगा तो उसके लिए energy is the main important key. ATP है ना? Active absorption of water requires energy to move water against the gradient. Against the gradient move करना है, active transport में हमेशा energy की requirement होगी. Next, which of the following shows the least water absorption? Which of the following shows the least absorption or the least water absorption? Root hairs, lignified xylem, root cap cells, cortex cells. So answer is lignified xylem. Why? Because they are already dead. They are dead vessels. They are rigid. So they do not absorb water. So सबसे कम जो होता है ये lignified xylem के through water absorption होता है. Next, which of the following is not involved in bulk flow of water? Transpiration pull, capillarity, imbition, root pressure. Which of the following is not involved in bulk flow of water? Answer is imbition. ठीक है? Imbition is water absorption by colloidal substances like dry seeds. ठीक है? ये bulk flow mechanism नहीं होता है. Next, what happens to a plant cell placed in a hypotonic solution? अगर किसी प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हम लोग रख देंगे तो क्या होगा? प्लाज्मोलाइसिस, इट श्रिंक्स, इट बिकम्स फ्लैसिड, इट बिकम्स टर्जिड. सो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कि इट बिकम्स टर्जिड. व्हाई? जब हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में उसको रखेंगे प्लांट सेल को, तो वाटर क्या होगा? वाटर विल मूव इनसाइड प्लांट सेल. All right. So internal pressure will increase inside the cell. That will cause the turgidity. So it will become turgid. Next, symplastic movement occurs through intracellular spaces, xylem vessels, plasmodesmata, cell walls. Symplastic movement occurs through. तो सिम्प्लास्टिक मूवमेंट जो होता है ना, वो जो एडजेसेंट सेल्स होती हैं उनके लिविंग साइटोप्लाज्म के थ्रू होता है. ऑलराइट. Symplastic movement occurs through the living cytoplasm of adjacent cell. क्यों होता है? क्योंकि ये एक दूसरे से प्लाज्मोडेस्मेटा से जुड़े होते हैं. राइट. अगर दो सेल्स हैं तो दोनों एक दूसरे से एडजेसेंट सेल्स हैं, इनका साइटोप्लाज्म एक दूसरे से कनेक्टेड होगा वाया प्लाज्मोडेस्मेटा. तो इसको हम लोग कहेंगे साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट. आंसर इज सी. Which of the following facilities transpiration in plants? Which of the following facilitates transpiration in plants? High humidity, wind and sunlight, low temperature, still air. Which of the following facilitate transpiration in plants? तो विंड और सनलाइट क्या करती हैं? विंड और सनलाइट जब रहेंगी तो ये स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, इवेपोरेशन इनहेंस हो जाएगा. दैट्स व्हाई दे विल फैसिलिटेट ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स. ठीक है. Imbition involves active transport, absorption of water by solutes, absorption of water by solids, osmosis. Imbition involves तो imbition जो होता है it is a passive absorption. It is a passive absorption of water.
ठीक है, ये किसके द्वारा होता है? जो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस होंगी, they will do the passive absorption of water, right? So answer is absorption of water by solid. The water potential of a flaccid cell is 0, more negative than pure water, positive, equal to solute potential. तो फ्लैसिड जो सेल जो होता है ना, फ्लैसिड सेल वो होता है जो कि अपना वाटर लूज कर दिया गया होता है उसमें, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल जो होता है, इट बिकम्स नेगेटिव कंपेयर टू प्योर वाटर। सो आंसर इज बी, मोर नेगेटिव देन प्योर वाटर। नेक्स्ट, root pressure is maximum in dry summer, during transpiration, during night or early morning, in wilting condition. Root pressure is maximum. तो जब रूट प्रेशर कब बढ़ता है? व्हेन ट्रांसपीरेशन इज लो, व्हेन ट्रांसपीरेशन इज लो, ठीक है। तो ट्रांसपीरेशन हमारा दिन में हाई होता है और रात में लो होता है। सो आंसर इज ड्यूरिंग नाइट और अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। ये क्या करता है? इट पुशेस द वाटर अप पैसिवली। नेक्स्ट, which of the following statements about xylem is false? Transports water, conducts food, has dead cells, unidirectional transport. Answer is conducts food, ठीक है। जाइलम का काम क्या है? ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल्स का अपवर्ड, ठीक है। और इसमें मोस्टली डेड सेल्स होती हैं। फ्लोएम इज ऑन द अदर हैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड कंडक्शन। एपोप्लास्ट pathway occurs through cytoplasm, vacuoles, cell walls, plasmodesmata. Apoplast pathway occurs through, जो एपोप्लास्ट पाथवेज होते हैं, इट हैपेंस थ्रू इंट्रा सॉरी इंटर सेल्यूलर स्पेसेस एंड सेल वॉल। सो आंसर इज सी, सेल वॉल्स, ठीक है। ये थोड़ा सा फास्ट मूवमेंट होता है, ये मेम्ब्रेन्स को अवॉइड करता है। इट इज अ पैसिव पाथवे एंड इट इज अ फास्टर मूवमेंट पाथवे। नेक्स्ट, which one of the following process helps phloem in translocation of food? Transpiration, pressure flow, root pressure, capillarity. तो होता क्या है? फूड जो कि लीव्स में बनती हैं, जो लीव्स में बनती हैं, यहां से फूड टिल रूट्स ट्रेवल करेगा, राइट। तो क्या होता है? शुगर मूव होता है फ्रॉम लीव्स टू रूट्स, या फ्रूट तक जाएगा या रूट्स तक जाएगा, ओके। तो ये हाइपोथेसिस जो होता है, ये प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस था, जो कि सबसे बेस्ट डिस्क्राइब करता है कि हाउ शुगर मूव्स इन फ्लोएम फ्रॉम द सोर्स दैट इज लीव्स टू सिंक दैट इज रूट्स और फ्रूट्स। ये यहां पे क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट बनता है, ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट बनता है, ठीक है। तो ये प्रेशर फ्लो के थ्रू ये फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट, phloem transport is passive, unidirectional, multidirectional, upward only. देखिए जाइलम जो होता है, जाइलम में क्या होगा? रूट से लीव्स तक या टिप्स तक जो है वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है एंड इट इज यूनिडायरेक्शनल। जाइलम में जो ट्रांसपोर्ट है ये यूनिडायरेक्शनल है, बट फ्लोएम ट्रांसपोर्ट इज मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। फ्लोएम कैन मूव मिनरल्स इन मिनरल्स नहीं, मटेरियल्स, जो भी फूड मटेरियल्स हैं, शुगर है, उसको ये किसी भी डायरेक्शन में मूव करा सकता है।
डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स एंड सिंक। आपका सोर्स किधर है, सिंक किधर है, इस पे डिपेंड करता है फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट। ठीक है, लीफ से रूट पे जाएगा या लीफ से फ्रूट्स पे जाएगा, इसलिए मल्टीपल डायरेक्शन होता है। द मेन कंपोनेंट इन्वॉल्व्ड इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज, the main component involved in long distance transport of water is parenchyma, xylem vessels, sieve tubes, cortex. The main component involved in long distance transport, कौन सा मेन कंपोनेंट होता है? तो आंसर इज xylem vessels. जो xylem vessels होती हैं, दे आर लॉन्ग, दे आर हॉलो, और इनका लिग्निफाइड स्ट्रक्चर होता है जिससे कॉन्टिन्यूअस पाइपलाइन बनता है फॉर लॉन्ग डिस्टेंस वाटर ट्रांसपोर्ट। रूट से लीफ तक जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है वो जाइलम के थ्रू होना है, एंड इट हैपेंस वाया जाइलम वेसल्स। नेक्स्ट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज्ड सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑन वाटर पोटेंशियल? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज्ड सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑन वाटर पोटेंशियल? नो चेंज, it increases, it becomes positive, it decreases. What is the effect of increased solute concentration on water potential? So answer is D, it decreases. अगर हम लोग वाटर में सॉल्यूट ऐड करेंगे तो इसका फ्री एनर्जी लो हो जाएगा, इसलिए जो होता है वाटर पोटेंशियल इसका वो नेगेटिव में चला जाता है। जितना सॉल्यूट हम लोग ऐड करेंगे, जितना हम लोग सॉल्यूट ऐड करेंगे उतना ही पोटेंशियल लो होता चला जाएगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, नेक्स्ट, द एसेंट ऑफ सैप इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय एम्बिशन थ्योरी, कैपिलरी थ्योरी, कोहेशन टेंशन थ्योरी, रूट प्रेशर थ्योरी। असेंट ऑफ सैप जो होता है ये 3 फोर्सेस यूज करता है, कोहेशन, एडिशन और ट्रांसपिरेशन पुल, ट्रांसपिरेशनल पुल। ठीक है, और ये होता है कैसे? जो असेंट ऑफ सैप है इन जाइलम, ये एक्सप्लेन किया गया है बेस्ट बाय कोहेशन टेंशन थियरी। ठीक है, in phloem loading the movement of sugars into sieve tubes occur by diffusion only, active transport, osmosis, plasmolysis. Answer is B, active transport. Phloem loading actually involves moving sugars into sieve tubes, और हमेशा ये ज्यादातर क्या होता है, अगेंस्ट ये कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है जिसकी वजह से हमको एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, सो इट इज अ active transport. Next, which of the following is true for guttation but not for transpiration? True for guttation but not for transpiration. A occurs through stomata, B loss of water in vapor form, C occurs at night or early morning, D regulates temperature. तो गटेशन कब होता है? when root pressure is high, और ट्रांसपिरेशन होगा लो। ट्रांसपिरेशन उस समय क्या होगा? लो। So answer is it occurs at night और अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि उसमें ट्रांसपिरेशन लो होता है। ठीक है, और रूट प्रेशर हाई होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स लीस्ट अफेक्ट्स ट्रांसपिरेशन? विंड, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, क्लोरोफिल कंटेंट। लीस्ट अफेक्ट्स ट्रांसपिरेशन, आंसर इज, देखिए जो ट्रांसपिरेशन होता है ये इन्वायरमेंटल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है।
लाइक विंड है, ह्यूमिडिटी है, लाइट है, बट इट इज नॉट अफेक्टेड बाय क्लोरोफिल लेवल. ऑलराइट, which are one of the following conditions results in the highest transpiration rate? High humidity, low wind; low temperature, high humidity; high temperature, low humidity; high humidity, no sunlight. Which of the following conditions results in the highest transpiration rate? Answer is C. High temperature, low humidity, which is which we can say see during daytime. Okay. Which one of the following statement is true for transpiration? It increases leaf temperature. It reduces mineral absorption. It creates a pull for water uptake. It occurs through lenticels only. Lenticels only. Answer is it creates a pull for water uptake. It creates a pull for water uptake. तो ट्रांसपीरेशन क्या होता है? ये नेगेटिव प्रेशर डेवलप करता है. ये नेगेटिव प्रेशर डेवलप करता है. उसके वजह से क्या होता है? जाइलम जो है वो ट्रांसपोर्ट स्टार्ट करता है वाटर का. Which plant hormone reduces stomatal opening, thus lowering transpiration? Gibberellin, cytokinin, auxin, abscisic acid. Which plant hormone reduces stomatal opening, thus lowering transpiration? So answer is abscisic acid, जिसको हम लोग ABA कहते हैं. इसको हम लोग स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं. स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं. यही क्लोजर ऑफ स्टोमेटा को कॉज करता है. अगर ड्रॉट हो या वाटर डिफिशियंसी हो और वैसा स्ट्रेस क्रिएट हो रहा हो, तो एब्सेसिक एसिड विच इज आल्सो नोन एज ABA विल कॉज क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. कोहेशन टेंशन थ्योरी इज मेनली रिलेटेड टू मिनरल अपटेक, गटेशन, असेंट ऑफ सैप, फूड ट्रांसलोकेशन. तो कोहेशन टेंशन थ्योरी भी हम लोग ने देखा था, किसके लिए था? इट वाज फॉर असेंट ऑफ सैप. नेक्स्ट, which of the following helps in closing stomata during water stress? High turgor in guard cells, loss of potassium ions from guard cells, uptake of sugars, influx of calcium ions. Answer is loss of which of the following helps in closing stomata during water stress? तो ये भी यूज होगा, लॉस ऑफ पोटेशियम आयंस फ्रॉम गॉड सेल्स. ठीक है, वाटर स्ट्रेस के समय जो ABA होता है, एब्सेसिक एसिड होता है, ये पोटेशियम आयन इफ्लक्स को ट्रिगर कर देता है गार्ड सेल्स में, जिसकी वजह से वो टर्जिडिटी अपना जो टर्गर होता है उसको लूज कर देते हैं एंड दे क्लोज स्टोमेटा. लॉस ऑफ पोटेशियम आयंस किससे गाइड होता है? इट इज गाइडेड बाय एब्सेसिक एसिड. एंड क्या होता है उसकी वजह से? टर्गर अपना वो लूज कर देते हैं गार्ड सेल्स, और दैट विल कॉज क्लोजिंग ऑफ stomata. Next, the Casparian strip is present in which part of the root? Epidermis, cortex, endodermis, pericycle. So Casparian strip is found in the radial walls of endodermal cells. Answer is endodermis. It is found in the radial wall of endodermis. All right. Sorry, radial walls of endodermal cells. Next, which of the following is not involved in passive transport of water? Diffusion, osmosis, facilitated diffusion, protein pump. Which of the following is not involved in passive transport of water? Answer is protein pump.
प्रोटीन पंप क्या होता है, ये एटीपी यूज करता है, प्रोटीन पंप यूजेस एटीपी। ये प्रोटीन पंप को अगर कोई भी सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट करना हो तो will require ATP, that's why it will be active transport। ठीक है, वहां पे पैसिव ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। The direction of phloem transport is determined by gravity, pressure gradient, capillarity, root pressure। तो phloem transport जो होता है वो किसके द्वारा ड्राइव होता है? It is driven by pressure gradient। It is driven by pressure gradient। सोर्स में और सिंक में प्रेशर डिफरेंस जो होता है उसी के थ्रू फ्लोएम ट्रांसपोर्ट होता है। Water absorption is mostly carried out by root cap, root hairs, cortex, pericycle। तो जो रूट हेयर्स होती है ना, जो रूट हेयर्स होती हैं, दीज आर द एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स। तो उससे क्या होता है कि सरफेस एरिया ये इंक्रीज हो जाता है इनका फॉर वाटर एंड मिनरल अब्जॉर्प्शन। ठीक है, और वो डायरेक्टली कांटेक्ट में होती हैं सॉइल सॉल्यूशन के। सो क्या होता है कि जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो मोस्टली बाय रूट हेयर्स होता है। Which of the following increases the rate of transpiration? High atmospheric humidity, cloudy weather, closed stomata, wind movement। Which of the following increases the rate of transpiration? Answer is wind movement। देखिए विंड क्या करता है ना, लीफ सरफेस से वाटर वेपर को रिमूव करता है जिससे कि ट्रांसपीरेशन रेट बढ़ जाता है। ओके, नेक्स्ट, which pressure is responsible for cell elongation during growth? Turgor pressure, root pressure, osmotic pressure, diffusion pressure। सेल इलोंगेशन ग्रोथ के टाइम पे कौन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? आंसर इज टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन अगेंस्ट द सेल वॉल ड्यू टू वाटर इनटेक। ठीक है, और ये क्रूशियल होता है सेल इलोंगेशन के लिए, रिजिडिटी मेंटेन करने के लिए हर्बेशियस प्लांट्स में। ठीक है, रूट प्रेशर इज अ negative hydrostatic pressure, positive hydrostatic pressure, negative osmotic pressure, positive osmotic pressure। जो रूट प्रेशर होता है इट इज अ पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इट इज अ पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इट इज जनरेटेड बाय द ऑस्मोटिक एक्यूमुलेशन ऑफ सोल्यूट्स इन जाइलम। जाइलम में क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्यूट्स, जिसकी वजह से ये जनरेट होगा। Which part of the root is involved in absorption of water and minerals? Which part of the root is involved in absorption of water and minerals? Zone of maturation, root cap, meristematic zone, zone of elongation। So which part of root is involved in absorption of water and minerals? Answer is zone of maturation। Next, which condition favors guttation? High transpiration and low root pressure, high humidity and high root pressure, low humidity and high transpiration, daytime with intense sunlight। गटेशन के लिए कौन से कंडीशन फेवर करेंगे? आंसर इज हाई ह्यूमिडिटी एंड हाई रूट प्रेशर। हाई ह्यूमिडिटी एंड हाई रूट प्रेशर। एग्जांपल एट नाइट, ये नाइट में होगा, उसमें ट्रांसपिरेशन भी लो रहता है, राइट। सॉल्यूट पोटेंशियल ऑफ अ सेल इज ऑलवेज पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव, इक्वल टू प्रेशर पोटेंशियल। तो सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होगा? हमेशा नेगेटिव होता है। इट इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि जितना सॉल्यूट डालेंगे वो उतना क्या करेगा, उसके
वाटर की फ्री एनर्जी को कम करता है। जितना ज्यादा सोल्यूट मतलब उतना कम पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल। नेक्स्ट, which component of phloem is responsible for food transport? Companion cells, sieve tube elements, phloem parenchyma, fibers. Answer is sieve tube elements. Sieve tube elements are the primary conducting cells in phloem for sugar transport. ठीक है, उनको असिस्ट करती हैं कंपेनियन सेल्स। हाई ऑस्मोटिक प्रेशर के जब कंडीशन आएगा तो उसमें असिस्टेंट का काम कंपेनियन सेल्स करेंगी, बट sieve tube elements are responsible for the transport of sugar, that is food. Water moves through the xylem in which direction? Lateral, from leaves to root, from roots to leaf, bidirectional. तो xylem का मैंने अभी बताया था, xylem का जो फ्लो होता है वो किधर से होगा? From roots to leaves होगा, और ये यूनिडायरेक्शनल होता है। What happens to water potential when solute is added? Becomes less negative, increases, remains unchanged, becomes more negative. What happens to water potential when solute is added? Becomes less negative, increases, remains unchanged, becomes more negative. Answer is becomes more negative. ये कई बार हम लोगों ने देख लिया ये कॉन्सेप्ट, जितना सॉल्यूट ऐड करेंगे उतना वाटर पोटेंशियल डाउन होता चला जाएगा। वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट्स अकर्स मेनली ड्यू टू कैपिलैरिटी, रूट प्रेशर, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन। वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है प्लांट्स में वो मेनली होता है वाया ऑस्मोसिस। इट इज द पैसिव मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इट इज द मेन मैकेनिज्म ऑफ वाटर अपटेक बाय रूट हेयर्स। ऑलवेज रिमेंबर, जो मेन मैकेनिज्म होता है वो ऑस्मोसिस ही है। द प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस एक्सप्लेन। प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस क्या एक्सप्लेन करता है? वाटर ट्रांसपोर्ट इन जाइलम, गटेशन, फूड मूवमेंट इन फ्लोएम, सेंट ऑफ सैप। तो जो ग्रेडियंट प्रेशर से फ्लो हो रहा था फूड का, वो कहां होता है? फूड मूवमेंट इन फ्लोएम। ओके, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस एक्सप्लेन क्या करता है? मास फ्लो ऑफ शुगर, मास फ्लो ऑफ शुगर विच इज फूड। ठीक है, सोर्स से सिंक में जो होता है फ्लो होगा शुगर का, विच इज ड्रिवन बाय ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंसेस, प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से। नेक्स्ट, लॉस ऑफ वाटर थ्रू क्यूटिकल इज कॉल्ड stomatal transpiration, lenticular transpiration, cuticular transpiration, guttation. तो लॉस ऑफ वाटर थ्रू क्यूटिकल इज कॉल्ड क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, है ना? जब वाटर डायरेक्टली इवेपोरेट होता है क्यूटिकल से, जो लीफ का जो वैक्सी लेयर होता है उसके सरफेस पे, उससे होता है, इट इज टर्म्ड एज क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। और हमेशा याद रखना, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन जो होता है इट इज ऑलवेज लेस देन स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, लेकिन फिर भी सिग्निफिकेंट होता है। Aquaporins are responsible for. Aquaporins are responsible for ion uptake, sugar transport, facilitated water movement, enzyme synthesis. Aquaporins क्या होते हैं? They are channel proteins. They are channel proteins. ठीक है, एक्वापोरिन्स का काम क्या है कि वाटर का रैपिड पैसेज की तरह काम करते हैं क्रॉस द मेम्ब्रेन। सो आंसर इज दे फैसिलिटेट वाटर मूवमेंट। ठीक है, यहां पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। यहां पे क्या होता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। दे डोंट रिक्वायर एनी एनर्जी फॉर दिस। Root pressure is unable to cause water rise in. Root pressure is unable to cause water rise in herbs, small shrubs, tall trees, young seedlings. देखिए, रूट प्रेशर जो होता है ना, इट इज अ वीक फोर्स।
लेकिन अगर बहुत लंबे ट्रीज होते हैं, इफ देयर आर वेरी टॉल ट्रीज, सो रूट प्रेशर कैन नॉट बी इफेक्टिव इन टॉल ट्रीज। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, कोहेशन टेंशन मैकेनिज्म यूज होता है, वहां पे कोहेशन टेंशन मैकेनिज्म यूज होता है इन टॉल ट्रीज। व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ सिम्प्लास्टिक ट्रांसपोर्ट? सिम्प्लास्टिक ट्रांसपोर्ट में ड्राइविंग फोर्स क्या होता है? एटीपी, प्रेशर ग्रेडियंट, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, डिफ्यूजन। तो सिम्प्लास्टिक मूवमेंट में क्या होता है, वाया प्लाज्मोडेस्माटा एडजेसेंट सेल्स में वाटर और सॉल्यूट्स मूव करते हैं, ठीक है, वाया साइटोप्लाज्म, और ये हमेशा होता है ऑस्मोटिक ग्रेडियंट की वजह से होता है। ये स्लो होता है, कंट्रोल्ड होता है, ठीक है। दैट्स व्हाई सिम्प्लास्टिक ट्रांसपोर्ट रिलाइज ऑन द ऑस्मोटिक डिफरेंस। In pressure flow mechanism, sugars move from sink to source, companion cells to phloem parenchyma, source to sink, root to leaf. Root to leaf. तो प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म में शुगर जो होता है वो कहां से कहां होता है, सोर्स से सिंक की तरफ मूव करता है ना। फूड जो होता है, सोर्स क्या होगी इसकी, सोर्स इज लीव्स, सिंक क्या होगा, सिंक होगा या तो रूट्स में जाएगा या फिर फ्रूट्स में जाएगा, स्टोरेज ऑर्गन्स में जाएगा, है ना। इट विल हैपन बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन एंड प्रेशर ग्रेडियंट्स। और ये जो फ्लो होता है ये बाई डायरेक्शनल होता है। सोर्स और सिंक का डायनामिक्स कैसे है उस तरीके पे ये डिपेंड करता है। ऑलराइट, सो आंसर इज सी, सोर्स टू सिंक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Hope you have enjoyed this. Please like the video, share it with your friends, and subscribe the channel. Thank you very much.